Because of the international dateline, the city of West Torrens is the first place in the world to celebrate this very important Independence Day of India. The first place in the world in 2023. And I'm extremely proud of that. भारत में जब सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे, तब ऑस्ट्रेलिया में एक इतिहास रचा जा रहा था। साल 2023 का पहला स्वतंत्रता दिवस एडिलेड में मनाया जा रहा था। ये पहला मौका था जब किसी काउंसिल द्वारा आधिकारिक तौर पर यहाँ भारत के आजादी दिवस का आयोजन किया गया था। सिटी ऑफ वेस्ट टॉरेंस के मेयर माइकल कॉक्सन ने भारतीय ध्वज फहराया और इसके साथ ही हवा में गूंजने लगा भारत का राष्ट्रगान। The City of West Torrens felt that it was appropriate, considering the very large Indian cohort that we have within our city, to actually allow for there to be an acknowledgement and a celebration of the world's largest democracy. And this is a very important thing because we share a common democracy. We believe in human rights, we believe in the rule of law, and we believe that everyone deserves a fair go, regardless of what your station is in life. And so the council determined some months ago that we would honour and celebrate the 76th anniversary of independence for India on this very special day with a flag raising ceremony. And I'm extremely proud to say that on our council of 14 councillors, that we have one councillor, Councillor Surinder Pal, who is from Haryana, who is a driving force behind raising the prominence of our local Indian community. In Australia, you can be 100% Australian and be 100% Indian. Isn't that a wonderful thing? इस आयोजन में सिडनी से भारतीय काउंसिल जनरल के नुमाइंदे के तौर पर कश्मीरी लाल जी भी पहुंचे थे। वहीं भारत से विशेष तौर पर मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स भी यहां पधारे थे। वहीं एडिलेड से भी कई अहम शख्सियतों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये मेरे लिए एक बहुत ही शुभ मौका है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन द सेंस कि हमारे ऑफिशियल सेलिब्रेशंस आज कंसुलेट या हाई कमीशन या एम्बेसी से बाहर फर्स्ट टाइम सबसे पहले, यानी इंडिया तो हमसे 4 घंटे पीछे है, तो यहाँ पे हमें झंडा फहराने का मौका मिला। और मैं कहूँगा एक कृतज्ञ राष्ट्र, ए ग्रेटफुल नेशन पेज ट्रिब्यूट्स टू द मार्टायर्स एंड हम कृतज्ञ हैं। We are grateful to the Honorable Mayor, Mr. Michael Coxon, to have organized. It's very important that we celebrate it. Congratulations to the West Torrens Council and especially Surinder Pal, who has organised most of this. It's important to celebrate our community's special days or special events, and today is Indian Independence Day, which is a celebration that is being celebrated in every corner of the world wherever Indians are. They celebrate it because it is special, and so should we here in Australia because we have such a large community. So congratulations.
congratulations to the organisers and happy Independence Day to all Indians wherever they are around the world. Look, I'm thrilled, absolutely thrilled that the City of West Torrens and in particular Mayor Michael Coxon orchestrated this really significant event. To be able to be the first country in the world to raise the flag on such an auspicious day, Independence Day for India, is just a real, it's beyond words how important it is, not only to the community but to the council significantly as well. So to be able to do this and to be part of that, there is no greater feeling. So happy Independence Day to all our Indian friends and all our Indian community. You play such a big part of our world here in West Torrens and the Greater Adelaide. You're one of the most important fabrics in this blanket of multiculturalism that South Australia is very proud of. इस आयोजन को संभव बनाने के पीछे सिटी ऑफ वेस्ट टॉरेंस से काउंसिलर सुरेंद्र पाल जी ने कड़ी मेहनत की थी और इस मौके पर उन्होंने अपनी खुशी को कुछ इस तरह बयान किया। आज वैसे तो हमेशा ही हमारी जन्मभूमि के प्रति बहुत ही प्यार होता है और हमारी जन्मभूमि हमारे दिलों में रहती है हमेशा। कर्मभूमि पे आए हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे 7 समंदर पार जन्मभूमि से आकर के कर्मभूमि पर भारत का स्वतंत्रता दिवस और वो भी डॉन सर्विस जो दुनिया में पहली बार किसी भी काउंसिल के द्वारा आयोजित की गई है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कभी संभव हो पाएगा। और इसका सारा श्रेय हमारे आदरणीय माइकल कॉक्सन जी, इनका आइडिया था, इनके पीछे जो दिमाग था और प्लानिंग थी वो सारा श्रेय इनको जाता है। और पूरी टीम भारतीय कम्युनिटी जो बढ़ चढ़ करके भाग लिया और सबके सहयोग से ही ये सेलिब्रेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो मैं पूरी भारतीय समुदाय का और जितने भी परफॉर्मेंस थे, स्पॉन्सर थे, आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन। इस मौके पर यहां पहुंचे सभी भारतवंशी भी इस आयोजन से बेहद उत्साहित नजर आए। साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में बहुत खास मौका, पहली बार किसी काउंसिल की ओर से भारत का स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, तिरंगा फहराया गया और बहुत सारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस मौके को खास बनाया। उनसे बात करते हैं क्या चल रहा है मन में, विदेशी धरती पर हमारी कर्म भूमि अगर मैं इसे कहूँ, जन्मभूमि से दूर इस तरह का खास मौका जब होता है पहली बार, तो क्या कुछ चलता मन में? बहुत खुशी की बात है कि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मैंने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया इंडियन इंडिपेंडेंस डे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। और स्पेशली जब बैप्स ने वो गाना गाया ऐ मेरे वतन के लोगों, तो उसमें हमारे जो हैं रोंगटे खड़े हो गए। हमें याद आता है कि जो 62 वॉर में हुआ, 71 वॉर में हुआ और सारे वॉर में जो होता रहा है, हमारे देश के लिए जो जवान मरते हैं उनको एटलीस्ट एक दिन तो याद करो, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी सब कुछ है लाइफ, लेकिन वो अपने सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अपने देश के लिए। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आज इतने सारे लोग इंडियंस आए हैं यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस डे ठंड में सेलिब्रेट करने के लिए। मैं यही कहना चाह रही थी कि एडिलेड के ठंडे मौसम में ये जोश के साथ जो गर्मी भरी, क्या कहेंगे? वेल, एज अ फौजी हमारे अंदर जोश की गर्मी हमेशा रहती है और इस देश के लिए जो हम लोगों ने काम किया है और यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है, आजकल जो मेन मैसेज वो ये है कि विविधता में एकता जी। और हम लोग यहाँ आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक वर्ल्ड जो है अभी एक वेल नेटवर्क्ड हो चुका है। ये देश जो है एक जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज हो चुका है और उसके अंदर एक तरह से विविधता में एकता अगर हम करते हैं, नॉट ओनली ऑन इंडियन सॉइल बट ऑल्सो ओवरसीज, तो वो हमारे जो फ्रेटर्निटी है यहाँ पर, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो ये करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह की जो इवेंट्स है जिसमें ऑस्ट्रेलियंस भाग ले रहे हैं और हमारी जो मान्यता पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध हो रही है, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है। You can take the Indian out of India, but you can't take the Indianness out of him. Yes. So that's what was very evident here today. The Bharatiyata was very much evident. And एक privilege that we had today was
we were the first, thanks to the international dateline. हमको मौका मिला झंडा फहराने के लिए, the first Indians in the world today to do it. तो बहुत खुश है। राइट, तो भारत की सवेर में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन एडिलेड की सवेर जब यहाँ पर हुई उसने बहुत एविडेंट बनाया इस मौके को। क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में चल रहा है? देश से दूर जब देशभक्ति यहाँ पर हम फील करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है जब मैं झंडे को देखता हूँ या हम ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो मुझे एहसास दिलाता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एवरी डे, एवरी मोमेंट। मुझे अब तक वो दिन याद है जिस दिन मैंने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लिया था। आई वॉज वेरी इमोशनल, मैं कभी रोता नहीं, उस दिन मैं रोया और मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा मौका होता है कि हमको अपनी धरती माँ से एक कनेक्शन करने का मौका मिलता है और रिमाइंड करता है मुझको कि मुझे हमेशा अपने देश के लिए काम करना है और अपने देश का नाम बड़ा करना है। वो बड़ा कैसे होगा? बाय सर्विंग द कम्युनिटी। और हम अपने, जो सर ने भी बोला कि हमारे इतना डाइवर्स कल्चर है और हम सब साथ में मिलकर रहते हैं, वही हमको एग्जिबिट करना है। वी हैव टू लुक आफ्टर आवर ओन पीपल, बिकॉज जो छोड़ के आए, मेरे जैसे अपने देश को छोड़ के आए हैं, जैसे सर वहाँ से आए हैं, तो हम उनका कौन देखेगा? हम ही भाई बहन हैं एक दूसरे के, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको आज याद रखनी है और पूरे साल भर निभाना है। फिर 15 अगस्त को दोबारा आके रिवाइज करेंगे। जी, हम अपना देश छोड़ के आए हैं अपनी भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और जब भावी पीढ़ी इस तरह से हमारे साथ इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करती है, समझती है इसकी इम्पोर्टेंस, व्हाट मैसेज इट गिव्स टू देम? उन्हें हमारे बारे में ये पता लगता है कि हमारी संस्कृति और हमारा जो धरोहर है देश की, कि कैसे आप उसे सहेज के रखें, ठीक है। और आज की डेट में मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही सजग है इस बारे में और बहुत अच्छा लगता है देखकर। और आई वुड से दैट ये जो हमारा हम देख रहे हैं कि आज हम अपना 15 अगस्त मना रहे हैं यहाँ पे, सो इट्स ऑल ड्यू टू एबल लीडरशिप। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर प्रसाद इज डूइंग गुड जॉब। इट्स अ ड्रीम टीम। पिछले कुछ समय से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में काफी प्रगाढ़ता आई है और इस तरह के आयोजन इनमें और गर्माहट लाने का काम करेंगे। ज्योतिका के साथ तेजिंदर सिंह, तेजो टीवी, एडिलेड।